Hello, friends. How are you all? I hope everyone is doing well. Everyone is in high spirits. Though this phase of pandemic, which is running currently, it's too tough. It requires a lot of patience. It requires a lot of strength from inside. But still, we need to keep hope and do our work accordingly. Like in your case, if I talk about study proper in a proper manner, study in such a way, thinking that whenever I'll be appearing for the attempt, definitely this time I'm gonna clear it. Those who have their first attempts, they need to think in this manner that they'll be clearing it in this attempt only, or no matter what happens. And those people, if I talk about the other side, wherein the candidates have already appeared for the first attempt and they are trying for the second or the third or the maybe the fourth attempt or maybe any other attempt, they should have a thought in their mind that this time I'm gonna make it, I'm gonna clear it. And it's very simple. I just need to focus on whatever I'm studying. I just need to pay attention, rely all my concentration towards studies. Because I'm sitting at home, I'm preparing. I don't need to worry about anything else. Okay, because the goal of my life is to become a CA, to become a chartered accountant. So, this is the thing which I wanted to convey, which I was thinking that I would be definitely expressing with you all once I get a chance. And though I'm taking CA Foundation business laws lectures. Specifically, I started with business laws only, and hopefully, what I am thinking of that I'll be teaching and I'll be taking another subjects too. But by the time, whenever I'm trying to deliver my content, it's my duty also that you people are able to understand in a clear manner. And it is my hobby, it's my passion to deliver you whatever you require in the best possible way. So last class mein we were discussing quasi contracts. Quasi contracts basically talks about those contracts which are actually not contract but they resemble a contract because they are involving three major principles: equity, justice, and good conscience. When these three principles are there in a contract and a social responsibility, a social relationship is being developed, this particular relationship gives rise to such kind of responsibility wherein a responsibility and obligation is created on one party and a right is being given, a right comes in favor of another party. So, in such kind of to be contracts, which appear to be contracts, the basic elements, the essential elements of a valid contract may not be present, like offer and acceptance, genuine consent, lawful consideration, lawful object. Okay, even agreement may not be present, but still they create such kind of social responsibility that one needs to fulfill, one needs to cater, or a party needs to cater. ठीक है, that particular act may be voluntarily. Voluntarily का मतलब क्या हुआ कि बिना किसी कंसिडरेशन के वो एक्ट हो सकता है. So this was the thing which I discussed in my last class, and I also told you people that I'll be covering cases deemed as quasi contracts in my next class, which I'll be doing it today itself, which is the last topic, particularly of this unit. The Indian Contract Act will be finished after this, and then we'll start with another chapter of business laws, that is Sales of Goods Act, or maybe Partnership, or maybe Companies Act, whatever. But we'll be beginning with the new chapter.
So in this particular quasi contracts, which are the cases which particularly they give an example, or they state that this particular situation or this circumstance is resembling a quasi contract, it is related to a quasi contract. Now if I talk about point number A, that is section 68, here it's written, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब कोई पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है, और वो किसी को लीगली बाउंड भी है, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इनकेपेबल है एंटर करने से, एंड इफ आई टॉक अबाउट इनकेपेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने इसके बारे में एक सेशन भी लिया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला, जिसमें आया था जिसमें ये लिखा था कि जो माइनर्स होते हैं या पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड होते हैं, ठीक है, दे आर इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और भी केस थे, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एक टॉपिक पढ़ा था, आप लोग को शायद याद ना हो रहा हो, लेकिन मैंने डिस्कस किया था, उसमें ये लिखा था कि जो लोग मेजर हैं, सॉरी वो तो एंटर करेंगे, जो मेजॉरिटी की एज जिन्होंने अटेन नहीं करी है, प्लस जो अनसाउंड माइंड के हैं या डिसक्वालिफाइड हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, वो इनकेपेबल है, और क्या लिखा हुआ है, anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to his condition in life। वो पर्सन जैसे फॉर एग्जांपल माइनर है, ठीक है, उसको कोई दूसरा पर्सन लाइफ की नेसेसरीज दे रहा है, लग्जरीज की बात नहीं हो रही है, कोई लग्जरी सप्लाई नहीं हो रही है, लाइफ की नेसेसरीज दे रहा है। The person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। जो भी पर्सन उस इनकेपेबल पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर हो गया, उसको अगर नेसेसरीज दे रहा है, ज़रूरतें दे रहा है, लाइफ की जो ज़रूरतें होते हैं, जैसे मान लीजिए शेल्टर हो गया, होम हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लोथ्स हो गए, फूड हो गए, ये लाइफ की नेसेसरीज हैं। तो अगर ये लाइफ की नेसेसरीज अगर उसको दे रहा है, तो उसके पास पूरा राइट है कि उसे रीइंबर्समेंट मिले। रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा, जो वो इनकेपेबल पर्सन है उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी खुद की, उससे रीइंबर्स होना चाहिए। जैसे ए जो है बी को सप्लाई कर रहा है, जैसे इसमें भी लिखा है माइनर है या ल्यूनेटिक है, उसको कोई एलिमेंट है, सारी ज़रूरतें जो भी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ए को क्या मिलना चाहिए, रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए बी की प्रॉपर्टी से। रीइंबर्समेंट का मतलब इसमें क्या है, रीइंबर्समेंट मतलब जो भी नेसेसरीज मिल रही हैं उसके इक्विवेलेंट उसे अमाउंट वापस मिलना चाहिए। जो भी नेसेसरीज एक पर्टिकुलर पर्सन प्रोवाइड कर रहा है उस इनकेपेबल पर्सन को, उस माइनर को या किसी अनसाउंड पर्सन को या जो डिस्क्वालिफाइड है या कोई भी, तो उस पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्सन सप्लाई कर रहा है नेसेसरीज, उसे बदले में उन नेसेसरीज के जो भी अमाउंट बनता है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट मिलना चाहिए, किससे, जो वो माइनर है या इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से, उसके एस्टेट से। तो ये बात हो रही है नेसेसरीज की इसमें, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी गार्जियन है जिसको वो माइनर जो है लीगली बाउंड है, ठीक है, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है, उसका बेसिकली मान लो कोई माइनर है जो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसका केयर टेकर कोई और है, ठीक है, तो वो जो भी केयर टेकर होगा, जो भी उसको नेसेसरी सप्लाई करेगा, उसे जो है उस नेसेसरी के बदले जो भी अमाउंट बन रहा है वो उस नेसेसरीज के अगेंस्ट में मिलना चाहिए, वो भी उस माइनर की प्रॉपर्टी से, उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। तो ये एग्जाम्पल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का,
कि अब जैसे ए अगर नेसेसरीज दे रहा है बी को, तो ए को रिइंबर्समेंट मिल रहा है बी की प्रॉपर्टी से, तो ये एक तरह का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, रिजेंबल कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है जिसकी वजह से ए को अमाउंट रिइंबर्स होना चाहिए क्योंकि ए ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है नेसेसरी सप्लाई करके। एक्चुअल बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी गुड सप्लाई हो रहे हैं उस पर्सन को जो कि माइनर है, ल्यूनेटिक है, ठीक है, वो बेसिकली उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। ठीक है, इसमें क्लेम एस्टैब्लिश करने के लिए सप्लायर को दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, यानी कि जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, पहली कि गुड्स जो है वो सप्लाई हो रहे हैं उस पर्सन को जो कि माइनर या ल्यूनेटिक है, दूसरी वो उसे उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं सेल और डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि जब मैंने गुड्स खरीदे उसके लिए और उसको जब डिलीवर करे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं उस पर्टिकुलर माइनर की या ल्यूनेटिक पर्सन की। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ल्यूनेटिक का मतलब भी बता दूं मैं क्या होता है। ल्यूनेटिक मतलब हो गया जो मेंटली इल है पर्सन, उसकी देख रेख के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है, उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसे नेसेसरी सप्लाई की गई है, तो उसके बदले में जो पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसे अमाउंट रीइंबर्स होना चाहिए उस ल्यूनेटिक पर्सन की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब बी पॉइंट क्या बोलता है? बी पॉइंट ये बोलता है कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है मनी में, ठीक है, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है मनी पे करने में, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, एक पर्सन इंटरेस्ट दिखा रहा है मनी पे करने के लिए जो कि दूसरा पर्सन लॉ से बंधा हुआ है पे करने के लिए, और वो इंटरेस्टेड पर्सन जो है पर्टिकुलरली वो पे कर रहा है, उसे रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए दूसरे बंदे से। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल बी की एक लैंड है बंगाल में, ठीक है, बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज, लेकिन उसने वो लैंड रेंट पे ली हुई है, किराए पे ली है, लीज पे ली है, और उसका एक्चुअल मान लीजिए ओनर है ए, तो जो भी रेवेन्यू पे होना है गवर्नमेंट को वो ए पे करेगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में रेवेन्यू जो है अरियर्स में चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, अभी तक रेवेन्यू पे नहीं हुआ है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्योंकि इस पर्टिकुलर लैंड से जो ए को बिलोंग करती है वहां से रेवेन्यू हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस लैंड को एडवर्टाइज कर सकते हैं फॉर सेल, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू या जैसे टैक्सेस वगैरह नहीं लैंड के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो अब रेवेन्यू लॉ में इस पर्टिकुलर सेल का रिजल्ट क्या निकलेगा, इस पर्टिकुलर सेल से क्या होगा कि बी ने जो वो लैंड ली है ए से लीज पे वो तो कैंसिल हो जाएगी। तो अब बी को जब ये बात पता चली और वो डर गया, तो उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू पे कर दिया जो ड्यू था उस पर्टिकुलर लैंड के रिस्पेक्ट में, जो रेवेन्यू ड्यू था जो आउटस्टैंडिंग था वो बी ने पे कर दिया ए के बिहाफ पे। तो अब ए की ड्यूटी क्या है, ए की ड्यूटी ये है कि जो रेवेन्यू बी ने, जिसने लैंड लीज पे ली है, जो कि टेनेंट है एक तरह से, जो कि लेसी है, तो अगर उसने लैंड लीज पे ली है और उसने पे कर दिया उसके बिहाफ में, तो ए की ड्यूटी ये है कि वो उस अमाउंट के लिए उसे रीइंबर्स करे। मान लीजिए 7,000 का रेवेन्यू था, गवर्नमेंट को बी ने पे किया, बी ने गवर्नमेंट को 7,000 रुपए दिए ए के बिहाफ में। अब ए 7,000 रुपीज बी को पे करेगा क्योंकि लैंड तो ए की है, बी उसमें जो है लेसी है, किराएदार है, और ड्यूटी ए की थी क्योंकि वो ओनर था उसे पे करना था, लेकिन बी ने पे कर दिया। तो अब इस केस में क्योंकि बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा करी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑफ करी है, तो ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको रीइंबर्स करे, बी को रीइंबर्स करे। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है सेक्शन 69 का कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है किसी पेमेंट के रिस्पेक्ट में, जो पेमेंट किसी दूसरे पर्सन को करना चाहिए क्योंकि वो बाउंड है लॉ से, उसकी ऑब्लिगेशन है, लेकिन जो पर्सन इंटरेस्टेड अगर वो पेमेंट कर भी रहा है तो उसे पूरा पूरा रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए।
ठीक है, दिस इज व्हाट सेक्शन 69 इज ट्राइंग टू से, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा लैंड में, जैसे रेवेन्यू का पेमेंट बी ने किया ए को, तो ए उसके बदले में रिम्बर्समेंट कर रहा है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिजेंबल कर रहा है, इसमें सोशल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है। ये असल में कोई कॉन्ट्रैक्ट से बनाया नहीं गया, ये अपने आप से आउट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ही ये निकल के आया है। सी पॉइंट क्या कहता है, इसमें 5 पॉइंट्स है, तो सी पॉइंट क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटुएटस एक्ट। अच्छा, ग्रेटुएटस एक्ट क्या होता है पता है? ग्रेटुएटस एक्ट यानी कि जो कि फ्री में करा गया हो, बिना किसी रीजन के कोई काम फ्री में करना, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में फ्री में। तो अब सेक्शन 70 क्या कहता है, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। यानी कि ग्रेटुइटस एक्ट तो फ्री में होता है, लेकिन कोई ऐसा एक्ट है जो कि फ्री वाला नहीं है, और उस केस में सेक्शन 70 ये बोलता है कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है, सर्विस डिलीवर करता है, गुड्स डिलीवर करता है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को, जिसमें उसका इंटेंशन नहीं होता है फ्री में करना, समझना बात को, क्योंकि इसमें लिखा है डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटुइटसली, ठीक है, तो उसका इंटेंशन नहीं होता है कि हम फ्री में करें, और दूसरा पर्सन पूरे बेनिफिट्स एंजॉय करता है, तो जो पर्सन बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है उसे कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए उस पर्सन को जिसने वो एक्टिविटी करी है या कुछ भी डिलीवर किया है, सर्विस दी है, गुड्स की डिलीवरी दी है, कुछ भी। तो अब इस केस में किसी केस को सक्सेसफुल करने के लिए प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्लेंटिफ का मतलब क्या हुआ? प्लेंटिफ मतलब जो पर्सन कोर्ट में केस लेके आता है, तो प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है और कोई थिंग डिलीवर की है जो कि लॉफुल है, जो कि लॉ के दायरे में है। दूसरी चीज, ही डिड नॉट डू सो ग्रेटुइटसली, उसने कोई भी चीज फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी है, क्योंकि ग्रेटुइटसली का मतलब ही यही होता है डन विदाउट गुड रीजन और गिवन और डन फ्री ऑफ चार्ज। तो वो बेसिकली कोर्ट में ये बोलेगा वो पर्सन जिसने जो केस लेके आया है कोर्ट में, कि उसने कोई भी चीज करी है, कोई भी लॉफुल एक्टिविटी करी है जो कि फ्री ऑफ चार्ज नहीं करी है और दूसरे पर्सन ने उसका बेनिफिट लिया है, तो उसे उस बेनिफिट के रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जैसे इसमें केस लॉ एक आया था श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसको रिटायर किया था गवर्नमेंट ने, तो उसने एक पेटिशन फाइल किया और इंजंक्शन ले लिया अगेंस्ट द ऑर्डर। पेटिशन फाइल करने का मतलब क्या हुआ? पेटिशन का मतलब क्या हुआ? पेटिशन का मतलब एक रिटन रिक्वेस्ट फाइल करी, अपील फाइल करी कि मेरे को जो है कंपल्सरली रिटायर कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए, तो वो एक रिटन रिक्वेस्ट फाइल करी है। और दूसरी चीज इसमें क्या लिखी है, इंजंक्शन उसने ऑब्टेन किया। अब इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? इंजंक्शन का मतलब होता है एक ऑर्डर ऑब्टेन किया है उस पर्टिकुलर कोर्ट से। मैं अभी बहुत इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि डिटेल में वील नॉट बी गोइंग, वो सब हम बाद में ग्रेजुअली पढ़ते रहेंगे क्योंकि ये लॉ है, ये वर्ड्स आपको बहुत बार सुनने में आएंगे। अच्छा, अब इसमें पेटिशन तो ठीक है, लेकिन रिट पेटिशन क्या होता है? क्योंकि आप लोग ये भी पूछेंगे कि रिट पेटिशन का मतलब क्या होता है। कोई भी जैसे कि ऑर्डर दे देता है ना कोई कोर्ट, कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर देता है कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टॉप करिए या इस तरह से एक्शन मत करिए, उसे बोलते हैं रिट पिटिशन।
एक तरह का फॉर्मल ऑर्डर इशू होता है एक गवर्नमेंट एक कोर्ट से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, एक लॉफुल बॉडी से, ठीक है। एक तरह से जो हायर अथॉरिटी होती है, जैसे मान लो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर दिया कि आप ऐसे एक्ट मत करिए या इस तरह से एक्ट मत करिए या ये एक्टिविटी स्टॉप करिए, तो वो होती है रिट पिटिशन। अब इसमें इसने एक रिट पिटिशन फाइल की, ठीक है। क्या किया होगा, जैसे लोअर कोर्ट में इसकी अपील रिजेक्ट हो गई तो इसने हायर कोर्ट में ये गया, वहां इसने रिट पिटिशन फाइल की लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में और इंजंक्शन ले लिया ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो इंजंक्शन ले लिया का मतलब उसके खिलाफ ऑर्डर ले लिया, ठीक है। इंजंक्शन ले लिया, समझ रहे हैं आप लोग कैसे इंजंक्शन कैसे, जैसे कि उसे प्रोटेक्शन मिल जाए एक तरह से कि अब इस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई और जो है एक्शंस ना लिए जाएं। तो इंजंक्शन लेने के बाद उसे रीइंस्टेट कर दिया गया, मतलब उसे जॉब में वापस बुला लिया गया, जब भी उसको रिटायरमेंट दिया गया था एक तो कंपल्सरी, लेकिन बाद में उसे रीइंस्टेट कर लिया गया, बुला लिया गया और सैलरी दे दी गई, लेकिन उसे कोई वर्क नहीं दिया गया। अब जब तक उसे रीइंस्टेट किया गया, दोबारा उसने ऑफिस ज्वाइन किया, सैलरी उसे पे नहीं करी गई, उतने टाइम में गवर्नमेंट ने अपील फाइल कर दी उसके खिलाफ। और अपील में गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन आया, ये बोला गया कि जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि इसमें एग्जाम्पल जैसे के दिया है, तो उसे अपनी सैलरी रिटर्न करनी पड़ेगी। कौन से टाइम की, उस टाइम की जब उसे रीइंस्टेट किया गया था, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और उसे रीइंस्टेट कर दिया गया था जब, तो उस ड्यूरेशन की सैलरी उसे वापस करनी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटुइटस एक्ट, यानी कि उस पर्सन ने लॉफुली कुछ किया, ठीक है, उसने कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल करी, इंजंक्शन ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन उसे वापस से जब रीइंस्टेट किया गया, उसे सैलरी मिली, उसे काम नहीं करने दिया गया, काम मिला ही नहीं। तो बाद में जब बेनिफिट रिस्टोर करने की बात आई तो वो उसे करना पड़ेगा, यानी कि सैलरी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि अपील फाइल कर दी गवर्नमेंट ने और डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में आ गया। अब इसमें केस कैसे सक्सीड हुआ, इसमें तीन चीजें कंप्लीटली कैसे फुलफिल होंगी। जैसे अब पहले के जो है गवर्नमेंट सर्वेंट, वो बेसिकली क्या किया उसने, वो केस लेके आया कोर्ट में, उसे तीन चीजों का ध्यान रखना था कि उसने एक्ट लॉफुली किया है, उसने ग्रेटुइटसली कोई एक्टिविटी नहीं की है, यानी कि फ्री में नहीं करी है, एंड अदर पर्सन एंजॉयड बेनिफिट। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें इस केस में, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो कैसे समझेंगे कि गवर्नमेंट ने ये बताना है, ये प्रूव करना है कि कोई भी एक्टिविटी हुई है वो लॉफुली हुई है, यानी कि उसका रीइंस्टेटमेंट उस एम्प्लॉय का लॉफुली हुआ है। सेकंड, फ्री में नहीं हुआ है, उसके लिए उसे सैलरी दी जा रही है और उस सैलरी का बेनिफिट उसने एंजॉय किया है। तो इसीलिए ये तीन चीजें इसमें फुलफिल होंगी। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक ट्रेड्समैन ने गलती से गुड्स छोड़ दिए बी के हाउस में बाय मिस्टेक, तो अब इसमें बी की ड्यूटी क्या है, बी की ड्यूटी ये है कि वो उसे संभाल के रखे, ठीक है, जब तक ए वापस नहीं ले जाता है, लेकिन बी उसे अपने गुड्स नहीं समझ सकता है, उसे उसके बदले में पे करना पड़ेगा अगर वो अपने समझ रहा है तो। वैसे पहली ड्यूटी ये है उसकी कि गुड्स रिटर्न कर दे, नहीं रिटर्न कर रहा है, अगर अपने समझ रहा है तो उसके बदले में ही इज रिस्पॉन्सिबली रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स। तो ये सी पॉइंट इसमें कवर हो रहा है। केस लॉ अगर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो डू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। डी पॉइंट क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स खो जाते हैं, किसी और पर्सन को बिलोंग करते हैं, और जो पर्सन उन्हें ढूंढता है, अपनी कस्टडी में लेता है, तो उसे उसके पास तीन प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहली, उन पर्टिकुलर गुड्स की या प्रॉपर्टी की सही से केयर लो,
जैसे एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस लेगा। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, मुझे पता है आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या क्या लिखा है इसमें। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ कि एक प्रूडेंट मैन, जैसे एक पर्सन अपने गुड्स संभालता है या अपनी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही जो फाइंडर होगा गुड्स का वो भी उसी तरह से ध्यान रखेगा, ये सोचते हुए जैसे अब वो ये तो नहीं कहेगा कि ये मेरे ही गुड्स हैं, बट जैसे एक ओनर अपने गुड्स का ध्यान रखता है ठीक वैसे ही फाइंडर को भी ध्यान रखना पड़ेगा जब तक गुड्स उसकी कस्टडी में हैं। उन गुड्स को एप्रोप्रिएट नहीं करेगा। एप्रोप्रिएट का मतलब किसी भी तरह से उसमें कोई भी तरह का एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ इसमें, किसी भी तरह का उसमें मॉडिफिकेशन, ठीक है, अपने ओनर के परमिशन के बिना उसे यूज करना, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना, कुछ भी करना, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, तो वो नहीं करेगा, एप्रोप्रिएशन नहीं करेगा। और जैसे ही ओनर मिलेगा वो रिस्टोर कर देगा गुड्स। तो तीन चीजें हैं, प्रॉपर केयर, नो राइट टू एप्रोप्रिएट एंड रिस्टोर करना। जैसे इसमें एक केस लॉ दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है, तो हम लोग समझते हैं दोनों। सबसे पहले केस लॉ, हॉलिन्स वर्सेस हाउलर LR&HL। एक पर्सन था H, वो एक डायमंड शॉप पे गया होगा, ज्वेलरी शॉप पे। उसने देखा फ्लोर पे डायमंड गिरा हुआ है एक पर्सन की शॉप पे जिसका नाम है F। उसने वो डायमंड उठाया और वो F को दे दिया और ये बोल दिया जब तक ओनर ना मिल जाए तब तक ये आप संभाल के रखिए। बेस्ट एफर्ट्स के बाद, मेहनतों के बाद ओनर नहीं मिल पाया, ठीक है, बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी ओनर नहीं मिला। तो अब बहुत सारे वीक्स जब पास हो गए तो एच ने एफ से बोला कि जो भी लॉफुल एक्सपेंसेस हैं, एच टेंडर्ड टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस incurred by him. Now what does tendered mean? टेंडर्ड का मीनिंग क्या होता है इसमें, अपने काइंडनेस से, अपना जेंटल बिहेवियर शो करते हुए उसने बताया जो भी लॉफुल एक्सपेंसेस उसने इनकर किए ढूंढने में, और उसे रिक्वेस्ट किया कि डायमंड रिटर्न कर दो मुझे। एफ ने मना कर दिया रिटर्न करने से। अब इसमें जब कोर्ट में ये इन्फोर्स हुआ तो क्या डिसीजन आया कि एफ जो है डायमंड रिटर्न करेगा एच को, क्योंकि उस ही वॉज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, क्योंकि ओनर तो मिला नहीं था तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गुड्स को रिटेन करने की, अपने पास रखने की। और जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता है तो उस ये ड्यूटी थी, ये चीज जस्टिफाइड थी कि गुड्स एच के पास रहें, वो उसे अपनी कस्टडी में रखे और खुद रिटेन करके रखे। तो जब एफ ने रिफ्यूज किया तो कोर्ट का डिसीजन ये आया कि डायमंड रिटर्न कर दिया जाए एच को, क्योंकि वही एंटाइटल्ड है गुड्स के रिस्पेक्ट में, वही एंटाइटल्ड है डायमंड के लिए, ठीक है, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा है, एक कस्टमर है, उसने, जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल कस्टमर है P, उसने D की शॉप में ब्रूच वॉन रख दिया अपनी कोट में और forget to pick it up, and one of the D's assistants finds it and puts it in a drawer over the weekend. On Monday, it was discovered to be missing. Now, D was held to be liable in the absence of ordinary care which a prudent man would have taken. अच्छा, ब्रूच वॉन का मतलब क्या होता है, ब्रूच वॉन, ब्रोच नहीं सुना है आप लोग ने, ब्रोच जैसे बेसिकली अटायर्स में पिन अप किया जाता है, दैट इज ब्रोच, ब्रोच, ठीक है। तो इसमें एक कस्टमर P D की शॉप में गया होगा, उसने अपने ब्रोच को उतार के रख दिया था जो उसने कोट में लगाया हुआ था, और वो उठाना भूल गया। तो D के असिस्टेंट ने वो ब्रोच एक ड्रॉर में रख दिया और फिर बाद में मंडे को जब देखा गया तो वो मिसिंग था। अब इसमें D लायबल होगा,
मान लीजिए पी क्लेम करता है, डी के पास जाता है और कहता है मेरा ब्रोच यहाँ पे था और वो मिसिंग है, तो डी लाइबल होगा उसे पे करने के लिए जो भी उस ब्रोच की वैल्यू होगी, क्योंकि उसने उस ब्रोच की केयर नहीं करी जो कि एक मैन करता है ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, तो वो केयर नहीं ली गई, इसीलिए डी लाइबल होगा। तो ये एग्जाम्पल है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की, कि प्रॉपर केयर ली जाए प्रॉपर्टी की, अप्रोप्रिएट ना किया जाए, यूज या मॉडिफाई या कुछ भी ना किया जाए उसमें ऐसा कुछ कि उस पर्टिकुलर गुड्स की प्रॉपर्टीज लूज हो जाए, उस गुड की वैल्यू ही लूज हो जाए या वो खराब सा हो जाए। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, उस पर्टिकुलर गुड को रिस्टोर किया जाए जैसे ही ओनर मिल जाए। ई पॉइंट क्या बोलता है? ई पॉइंट ये बोलता है अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर कोर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। कोर्शन में, थ्रेटनिंग एक्टिविटी में अगर कोई अमाउंट किसी को पे करना पड़ रहा है, किसी के जैसे बोलते हैं ना कि धमकी, जैसे मान लीजिए किसी ने दी और उसमें एक पार्टी को पेमेंट करना पड़ा बहुत अच्छा खासा अमाउंट, तो जो कोर्शन एक्सरसाइज कर रहा है उसे वो अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा अग्रीव्ड पार्टी को जो सफरर है। कोई भी तरह का जैसे पेमेंट भी किया है तो वो वापस करिए, या गुड्स की डिलीवरी की है तो वो वापस करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, मिस्टेकन भी हो सकता है, इसमें मिस्टेकन वाला एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे एक म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट हुआ मिस्टेकनली, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लीज के टर्म्स नहीं समझ पाए, तो ये म्यूनिसिपल अथॉरिटी से वापस किया जा सकता है क्योंकि इस पे केस लॉ भी आया है ना। और सिर्फ कोर्शियन वाली एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी अमाउंट मिस्टेकिंगली अगर पे हो गया गलती से तो वो भी वापस करना जरूरी है, वो भी इसमें कवर्ड है। और कोर्शियन तो हमने अपने एसेंशियल जो भी एलिमेंट्स पढ़े थे, फिर एलिमेंट्स विशिएटिंग फ्री कंसेंट पढ़े थे, तो उसमें वो कवर किया था। अब इसमें एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे टी वॉज ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, एक ट्रैम कार में वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, चेकिंग में ही वॉज आस्क्ड टू पे 5 रुपीज एज पेनल्टी। नाउ टी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन फॉर रिकवरी ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हिम। अब देखिए इसमें अलग ही चीज इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि एक पर्सन विदाउट अ टिकट ट्रैम कार में ट्रैवल कर रहा था, फिर उसे ये कहा गया कि 5 रुपीज एज अ पेनल्टी दीजिए क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है। तो अब उस पर्सन ने केस फाइल किया है कॉरपोरेशन के खिलाफ। जैसे इसमें जो केस लॉ आया था, लिखा है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि उससे जो रिकवरी जिस तरह से ली गई है, थ्रेटनिंग तरीके से ली गई है, उससे वसूला गया है, एक तरह से थ्रेट के तरीके से या फोर्सफुल तरीके से उसे वसूला गया है। तो जो भी पेनल्टी उसे उससे वसूली गई है फोर्सफुली, तो इसलिए वो मुझे वापस मिलनी चाहिए। और केस जो है, जो डिसीजन आया कोर्ट का, वो टी के फेवर में ही आया। तो इससे एक चीज और जस्टिफाई हो जाती है कि कोवर्शियन एक्टिविटी में जैसे ऑपरेशन है, फोर्सफुल एक्ट्स हैं, एक्सटॉर्शन है, वसूली करी जा रही है, तो वो भी चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। अगर वो भी फेस हो रही हैं तो उस केस में भी रिकवरी करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। बेनिफिट कोई लिया है तो वो रिस्टोर करना पड़ेगा, गुड्स लिए हैं तो वो रिटर्न करने पड़ेंगे, पेमेंट करी है तो वो भी वापस करनी पड़ेगी। तो वही इसमें केस लॉ भी है, और उस पर्टिकुलर पर्सन जो टी है उसके फेवर में ही आया था ये डिसीजन कोर्ट का, कि क्योंकि एक्सटॉर्शन है मनी का, वसूली करी है फोर्सफुली, तो इसलिए वापस करा जाएगा टी को जो भी पेनल्टी उसे ली गई है। तो ये पर्टिकुलर इसमें पॉइंट्स थे जो कि केसेस हैं अलग अलग ABCDE जो लगते हैं एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें एक तरह से बोला ही जाता है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि हमें रियल लाइफ में ऐसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स मिल नहीं पाते हैं। तो ये वो केसेस हैं जो ये बताते हैं बेसिकली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
अब हमारा क्योंकि चैप्टर एंड हो गया है, सो वील बी एंडिंग अप टुडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि वील बी डिस्कसिंग रिविजन टेस्ट और मॉक टेस्ट पेपर्स एज द केस में बी, बट वील बी होल्डिंग अ क्लास ऑन दैट definitely. So if you face any such sort of queries, please do not forget to mention on the comment box. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो do not forget to like the video, share the video and subscribe my channel. Also press the bell icon for latest updates. एंड इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। तो ये वो केसेस हैं जो कि बोले जाते हैं कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में काफ़ी रिलेट करते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को उसके प्रिंसिपल्स से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो ये वो केसेस आज डिस्कस किए मैंने आपसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट ले लेंगे। ओके, थैंक यू।